Dr. Anamika Gupta from BNY's department. I'm going to now we are going to study about the Ashtanga Yoga, the philosophy of Ashtanga Yoga. The philosophy of Ashtanga Yoga. Today's our topic of object of the session is what is Ashtanga Yoga, the difference between the Bahiranga and the Antaranga Yoga, or what is Bahiranga and Antaranga Yoga, the types of Yama and its importance, Niyama and its important, Asana and their benefits, Pranayama, their classification of Pranayama, and then Pratyahara, its benefit, and last not the least, the Samyama means the Dharana, Dhyan, Samadhi. Now, first of all, we will learn what is Ashtanga Yoga. Where from the Ashtanga Yoga, concept of the Ashtanga Yoga come from? The Ashtanga Yoga is given by the Maharishi Patanjali in his Yoga Sutra, in his book Yoga Sutra, the Sadhana Path and Vibhuti Path. The Ashtanga Yoga starts from the Sadhana Path, 29th Sutra of the Sadhana Path, and end up with the Vibhuti Path, 4th Sutra of the Vibhuti Path. Ashtanga word come from the Sanskrit word and comprises two words, Asht plus Anga. Asht means 8 and Anga means limbs. So in Ashtanga Yoga there are 8 limbs of the yoga therapy, or we can say the philosophy are described. Ashtanga Yoga comprises 8 limbs which is given by the Maharishi Patanjali ji. 8 limbs of the Ashtanga Yoga are what? Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhiyo, Yogasya Ashta Angani. This is the 29th Sutra of the Sadhana Path described by the Maharishi Patanjali, given by the Maharishi Patanjali, and this Sutra 8 limbs are described. Yam, Niyam. Yam are the self-restraints, Niyama are the fixed rules, Asana means posture, Pranayama breathing awareness or breathing techniques, Pratyahara withdrawal from the sense, Dharana this is the concentration, Dhyana Samadhi, Dhyana means meditation, and Samadhi means the ultimate moksha or the observance with the oneself. Now further we will learn the Ashtanga Yoga comprises Antaranga Yoga and the Bahiranga Yoga. Antaranga and Bahiranga, the 8 paths, the 8 limbs of the Ashtanga Yoga are classified into the Bahiranga Yoga and the Antaranga Yoga. Bahiranga are the Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahara. These 5 practices are called Bahiranga Yoga. Why? Because these practices the human being or individual practicing for बाह्य self means उसके बाहरी चीज़ों के लिए, not for the internal things, for the body, for the pranamaya kosha, and for the social environment. Then that's Antaranga Yoga. Antaranga Yoga is practiced after the one is perfect in the Bahiranga Yoga. जब कोई व्यक्ति बहिरंग योग में परफेक्ट हो जाएगा, मीन्स द 5 स्टेजेस क्रॉस कर लेगा, देन ओनली he can practice the Antaranga Yoga, Dharana, Dhyan, Samadhi. Again we will discuss one by one, step by step, what is Niyama, what is Yamas, what are the Asanas according to Maharishi Patanjali. Now the first step of our Ashtanga Yoga is the Yama, the restraint, self-restraint. In this we are restraining ourselves for not doing the things, the yamas
फॉर द सोशल वेलबींग, हमारी सोशल लाइफ इससे इम्प्रूव होगी। व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग यमा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप और दिस इज द बहिरंग योग इंक्लूडेड इन द बहिरंग। तो यमा, द 30th सूत्र of the strong of the sadhana path is described about the yama. अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, आस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस आर दी फिक्स्ड सेल्फ रेस्ट्रेंट for the individual. This is the first step. Yama is the first step of the Ashtanga Yoga. Now, how Ashtanga Yoga can practice or Now, the yamas are also considered as Mahavratam. So, Mahavrat is yama. And why they are calling Mahavrata? Because जाति, देश, काल, समय, अनविच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रत means whenever any individual performing yama what we have discussed, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। और जो 5 यमास हैं, जब भी कोई इंडिविजुअल उन 5 यमास को विदाउट एनी बाउंडेशन फॉलो कर रहे हैं, मीन्स जाति या क्लास कि अगर आपको अहिंसा फॉलो करनी है तो आप सभी जाति के लोगों के साथ अहिंसा फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारी क्लास का है तो इसके साथ हम अहिंसा फॉलो कर रहे हैं, सत्य फॉलो कर रहे हैं, आस्ते फॉलो कर रहे हैं। बट अगर कोई और जाति का इंसान आएगा या जो कोई और जाति का इंडिविजुअल आया तो आपको अहिंसा फॉलो नहीं करनी, हिंसा फॉलो करनी है, या आपको सत्य नहीं फॉलो करना, असत्य फॉलो करना है। तो दिस इज द बाउंडेशन फॉर द महाव्रतम कि यम जब महाव्रत कहलाएंगे जब आप उनको जाति, देश, काल, समय इन सबसे परे ऊपर उठकर अगर आप यमा फॉलो कर रहे हैं तो वो कहला रहा है आपका महाव्रत। देश मीन्स एट एवरी प्लेस यू हैव टू फॉलो यमहास। काल, किसी भी समय, दिन हो, रात हो, ऐसा नहीं है कि मान लो कि सुबह मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा और शाम को नॉनवेज खाऊंगा, सुबह में आपके लाइक कर नहीं लूँगा, शाम को ले लूँगा। सो दिस इज नॉट द फॉलोइंग ऑफ द महाव्रत, फॉलोइंग ऑफ द यमास। देन समय मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी की मैरिज के समय, अगर आपके घर में मैरिज है तो आप अहिंसा फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे या चोरी नहीं करेंगे। अगर किसी दूसरे के घर में फंक्शन है तो आप वहीं पे वही सब फॉलो कर रहे हैं जो आपको नहीं फॉलो करना है। तो यमहा जो है महाव्रत तभी कहलाते हैं जब आप इन सब चीज़ों से परे हटके उसको फॉलो करते हैं, जाति, देश, काल, समय से हटके। नाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न द यमहास कि यमहा क्या है और इनके करने के क्या हमें इम्पोर्टेंस मिल सकता है, क्या हम फील कर सकते हैं, कैसा हमें लगेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग मीन्स जब भी कोई व्यक्ति अहिंसा को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं कि आज आपने 1-2 दिन अहिंसा फॉलो करी, नॉन वायलेंस में रहे, नेक्स्ट आपने वायलेंस फॉलो किया और फिर कहा कि ये तो फल मुझे मिला ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। You have to follow these all the time means 1 महीने 2 महीने जब से आपने अहिंसा फॉलो करना स्टार्ट किया, जब से आपको अहिंसा फॉलो करना है, उसको बीच में ब्रेक नहीं करना है। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर अगर किसी व्यक्ति में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो चुकी है तब क्या होगा, उसका फल क्या होगा, उसके सानिध्य में, उसके पास, उसके ऑरा में जितने भी लोग आएंगे वो अपना बैर त्याग कर देंगे।
अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। मतलब जब भी किसी व्यक्ति ने अहिंसा फॉलो किया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, उसकी प्रतिष्ठा हो गई, तब उस व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग आएंगे वो अपने बैरी जो स्वभाव होगा, अपना एनिमी जो होगा वो उसे छोड़ देंगे। ओनली बीइंग फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन अहिंसा देयर इज अबंडमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी एंड हिज विसिनिटी। मतलब उस व्यक्ति के प्रेजेंस में अगर कोई बैरी व्यक्ति भी आ रहा है, अगर कोई दुश्मन भी आ रहा है, तो वो अपना बैर त्याग कर देगा। जैसे कि हम देखते हैं पुराने ट्रेडिशनल टेक्स्ट में कि ऋषि मुनीस होते थे और उनके प्रेजेंस में, उनके आश्रम में दुनिया भर के वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स सभी एक साथ रह रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका ऑरा वैसा है कि उनके ऑरा में, उनकी प्रेजेंस में सभी लोग अपना जो हिंसा वाली प्रवृत्ति है उसका त्याग कर देंगे। नेक्स्ट, अहिंसा क्लासिफाई की गई, हिंसा जो है वो क्लासिफाई की गई है कृता, कृता, अनुमोदिता। कृता मीन्स वी आर डूइंग डायरेक्ट हिंसा और कमिटेड वायलेंस की मैंने किसी को स्लैप कर दिया या किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी के साथ कुछ भी हर्ट कर दिया, चाहे इवन वो फिजिकल हो, मेंटल हो या वर्बल हो। तो फिजिकल, मेंटल किसी भी टाइप से आप कुछ किसी को हर्ट कर रहे हैं तो डेट इज कम अंडर दी वायलेंस। दैट्स है करिता। करिता मीन्स इनडायरेक्ट वायलेंस, कि आपने जैसे कि कोई नॉनवेज खा रहा है तो नॉनवेज वो खा रहा है पर वो बुचर नहीं है, उसने उस जानवर को नहीं मारा। सो दिस इज इनडायरेक्ट हिंसा। हमने किसी से कह दिया कि ज़रा उसको मार देना, तो ये कहलाएगी आपकी इनडायरेक्ट हिंसा। नेक्स्ट है आपकी अनुमोदिता। अनुमोदिता में पैसिवली हमें पता है कि ये जो व्यक्ति हैं, दोनों जो लड़ रहे हैं, ये गलत लड़ रहे हैं, मतलब इनको नहीं लड़ना चाहिए, किसी ऐसी वजह से लड़ रहे हैं जिसमें कोई गलत फहमी है, बट हम उस चीज़ को नहीं बता रहे हैं कि हाँ आप लोग जो है वो गलत बात के लिए लड़ रहे हो। सो दैट इज अनुमोदना। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट जो यमा है सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलम श्रत्वम मीन्स सत्य जब प्रतिष्ठित होता है तब हमारे एक्शन और फल, जैसा उसने बोल दिया, जैसा उसने कह दिया, वैसा ही हो जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सत्य को फॉलो कर रहा है तो उसके वर्ड जो होंगे, जो भी उसने बोल दिया, वो कम ट्रू हो जाएंगे। मतलब जैसे ऋषि मुनि होते थे पहले के ज़माने में कि वो कर्ज कर सकते थे, श्राप दे सकते थे, वरदान भी दे सकते थे। अगर किसी व्यक्ति की पेट में फ्यूचर में वो चीज़ नहीं भी और किसी ने वरदान दे दिया तो वो कम ट्रू हो जाती थी। दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर फॉलोइंग द सत्य, द ट्रुथफुलनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है आपका आस्तेय। आस्तेय प्रतिष्ठायाम, आस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग। आपको चोरी वाली जो भावना है, जो चोरी नहीं करनी है, चोरी से हमें दूर रहना है। आस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपास्थाना मीन्स whenever you are following non-stealing from a long period of time, there are whenever it established sarvaratnopasthana means all the gems, all the precious things which are in the world is come to you. आपके पास आ जाएगी जितने भी रत्न हैं, जितनी भी जेम्स हैं, और जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो स्वयं खुद ब खुद इटसेल्फ आपके पास आएगी। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य में सेक्शुअल नॉन पोजेसिवनेस, सेक्शुअल एक्टिविटी में आपको पोजेस नहीं होना है। तो व्हेन द साधक इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इनकॉन्टिनेंस, नॉलेज विगर इज कम टू हिम। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है, ब्रह्मचर्य जो स्टैब्लिश होती है, तो तब क्या होता है? वीर्य लाभ। वीर्य इज कम विगर, विगर इज कम फ्रॉम द इंग्लिश संस्कृत वर्ड वीर्य। वीर्य मीन्स एनर्जी।
आपकी एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हो सेक्सुअल पॉजिटिवनेस में वो सेव हो जाएगी, और दैट सेव्ड एनर्जी वी कैन यूज़ फॉर द फर्दर positive things like for study purpose, for the development of ourselves or the environment or the social development. Next आएगा अपरिग्रह. अपरिग्रह is non possessiveness. Non possessiveness means worldly things we should not collect the things like ये एक मकान है, ठीक है, दूसरा भी होना चाहिए, ये मेरे पास एक फ्रिज है, चलो ठीक है, और भी हो जाना चाहिए, एक गाड़ी है और हो जानी चाहिए. तो पॉजेस नहीं करना है चीज़ों को, हमें इकट्ठी नहीं करनी है चीज़ों को, बिकॉज द वर्ल्ड जिस वर्ल्ड में हम आए हैं, जिस संसार में हम आए हैं, वो हमेशा हम उस संसार में नहीं रहने वाले. तो योगा से अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोधा. जब हम अपरिग्रह को फॉलो करते हैं, उसमें स्टैब्लिश होते हैं, तब क्या मैनिफेस्ट होता है, तब क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा जन्म कथांता, जन्म की कथा, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्या काम करने के लिए इस संसार में आए हैं, इस कथा का हमें बोध हो जाता है कि हम जो है वो इस संसार में क्यों आए. वह कब होगा ऐसा, जब आप नॉन पॉजिटिवनेस को फॉलो कर रहे हैं. Next, we will discuss about the niyamas. Niyamas are the rules or regulations for ourselves. हमारे लिए अभी तक हमने जितने भी यमास देखे, 5 यमास देखे, तो यमहा क्या थे, हमारी सोशल लाइफ को वेल कर रहे थे. उसमें सोशली हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने किसी के साथ हिंसा नहीं करी, हमने किसी को झूठ नहीं बोला, हम सच बोल रहे हैं, हमने किसी की चीज़ों को चुराया नहीं, हम अच्छे से चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, हमने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करी, सेक्सुअल पॉजिटिवनेस में नहीं थे, हम नॉन पॉजिटिवनेस में थे, और आस्ते में सब चीज़ें इकट्ठी भी नहीं कर रहे थे. ठीक है, अगर हमारे पास वो चीज़ है जो किसी की ज़रूरत की है, तो ठीक है, हम उसे दे देंगे. तो इस तरीके से जो हमारी सोशल लाइफ थी वो वेल इस्टेब्लिश हो रही थी, हमारा जो ऑरा था वो अच्छा क्रिएट हो रहा था. और प्लस इसका एक और बेनिफिट होगा कि हमारा जो माइंड है वो दूसरे जो क्रिमिनल थिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होगा. वी विल बी इन अ पीस. नाउ नियमा इज द सेकंड स्टेप ऑफ अष्टांग योगा. सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमा मीन्स cleanliness, purification, contentment, religious zeal, authority, swadhyay, self-study, Ishwar Pranidhan means surrenderance to the God. Now the niyama is for ourselves, the yama for the social purpose, for the other persons, but the niyama for ourselves. हमारे लिए नियमाज हैं, ये हमारी शुद्धि करेंगे. सोच मीन्स क्लीनिनेस, सोचात स्वांग जुगुप्सा परे संसर्गा. मतलब जब हमारी बॉडी और माइंड क्लीन होगा तब क्या होगा, जब हम सोच प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, हम अपने माइंड को क्लीन कर रहे हैं, तब क्या होगा, व्हेन क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड डेवलप डिसइंटरेस्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द अदर्स फॉर द सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. मतलब हमारी बॉडी भी प्योर है और माइंड भी प्योर है, तो हम दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे, हमें डिसइंटरेस्ट है कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. तो इस तरीके से हमारी जो लाइफ है, जब हम सोच परफॉर्म करेंगे तो हमारे अंदर डिसइंटरेस्ट डेवलप होगा दूसरों के लिए कि दुनिया क्या कर रही है, अरे ऐसा था ना, अरे वो भी ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा फॉलो करूँगा, अगर इसने किसी टाइप का क्राइम किया है तो ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत कर देता हूँ, उसमें क्या चला जाता है. बट नहीं, जब हम सोच फॉलो करेंगे तब क्या होगा, डिसइंटरेस्ट डेवलप होगा, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या करना चाह रहे हैं, इस तरीके से हमारा जो मेंटल पीस है वो हमारे पास ही रहेगा और वो डिस्टर्ब नहीं होगा. नेक्स्ट हमारा संतोषा. संतोष अनुदत्तम सुख लाभ. मीन्स संतोष जब किसी के पास है
तो उसको किस चीज़ का लाभ होगा? सुख का। वो हमेशा हैप्पी रहेगा। अगर सेटिस्फैक्शन है किसी इंडिविजुअल के पास, ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, नहीं है तो नहीं है, ठीक, आगे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो भी, तो दिस इज़ अ सेटिस्फैक्शन। अगर हमारे पास सेटिस्फैक्शन है, हम कंटेनमेंट में हैं, तो जो सुख, जो हैप्पीनेस रहेगी वो हमेशा हमारे पास रहेगी, कि हम हमेशा जो है वो हैप्पी रहेंगे। हमें किसी से कोई लेना देना, कहा है ना कि गोधन गजधन बाजधन और रत्नधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मतलब कितने भी आपके पास धन हो, उससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, बट अगर संतोष नाम का धन आपके पास है, सेटिस्फैक्शन आपके पास है, तो सब धन, जितने भी धन है, वो आपके साथ धूल के समान है, यानी वेस्ट में। नेक्स्ट है आपका तपह। काया इंद्रिया सिद्धि अशुद्धि ख्यात तपह। मतलब जब काया और इंद्रियों की अशुद्धियों को हम तप से शुद्ध करते हैं, तो इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब ये हम अपने ही लिए कर रहे हैं, हमने सोच फॉलो करी अपने लिए, संतोष फॉलो किया अपने लिए, तपह जो फॉलो कर रहे हैं वो भी हम अपने ही लिए फॉलो कर रहे हैं, कि जब तपह हम करेंगे, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में लाएंगे अपनी काया और इंद्रियों को, उनकी अशुद्धियों को, कि बॉडी कुछ और देख रही है, उसको कुछ और चीज़ें चाहिए, कि गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, ठंड लग रही है, ये खाना है, और इंद्रियों की भी जब हम शुद्धि करते हैं, तो इन दोनों की शुद्धि जो होती है वो हो जाती है, और हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो फ्री हो जाती है ना। हमें योगा के पाथ में आगे बढ़ना है। नियम हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी और माइंड जो है वो पीस की स्टेट में आ जाएं। फिर हम आसनास पे आएंगे, फिर हमारा आसनास जो है वो स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय में सेल्फ की स्टडी, स्वाध्याय दिष्टा देवता संप्रयोगा। जब हम स्वाध्याय करते हैं, हम अपना ही अध्ययन करते हैं, मीन्स अगर योगा की बात देखी जाए तो हमारे अंदर एग्जिस्टेंस होता है 5 लेवल्स का। 5 कोशास हैं जो आउटर टू इनर है, इनर टू आउटर है। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, भले हम आउटर टू इनर करें, यानी अन्नमय कोशा से हम आनंदमय कोशा की तरफ जाएं, या आनंदमय कोशा से अन्नमय कोशा की तरफ आएँ, तो हमें अपने गॉड की, जो हमारे डैडी हैं, उनका रियलाइजेशन होता है, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मीन्स सरेंडरेंस टू द गॉड। ये समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानानी मीन्स जब हम अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करते हैं, कि यू आर माई बॉस एंड आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप ही हो जो हो और जो कर सकते हो या कुछ भी करवा सकते हो। जब हम इस तरीके की भावना लाते हैं, सरेंडरेंस टू द गॉड ब्रिंग परफेक्शन इन द समाधि। जो समाधि की स्टेज या जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें परफेक्शन लाती है। नाउ द थर्ड लिम्ब ऑफ द अष्टांग योगा इज आसना। स्थिरम सुखम आसना मीन्स आसन क्या है? अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि जी, आसना इज फॉर्म स्टडी पोज, स्थिर जो स्टडी हो और जिसमें हमें कंफर्ट महसूस हो, वो आसन जो रहेगा वो रहेगा हमारा स्थिर और सुखपूर्वक। जो भी जिस भी पोस्चर में हम बैठ पा रहे हैं उसे पतंजलि जी आसन कह रहे हैं, कि आसना इज अ परफेक्ट फॉर्मनेस ऑफ द बॉडी, स्टडीनेस ऑफ द इंटेलिजेंस एंड विनोबलेंस ऑफ द स्पिरिट। मतलब आसन क्या कहला रहा है? जब हमारी बॉडी स्थिर है, हमारी इंटेलिजेंस भी स्थिर है और हमारी जो स्पिरिट है वो आगे जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है परफेक्शन ऑफ द आसना। कब आप ये कह सकते हैं कि इस आसन में
मैं परफेक्ट हूँ। तो जब पोस्चर है मेरा वो परफेक्ट हो चुका है। प्रयत्ने शैथिल्याम अनंत समाप्तिभ्याम मीन्स प्रयत्न जो है वो शैथिल्य हो जाए, एफर्ट जो है हमारा वो ना के बराबर हो, हमें एफर्टलेस नहीं कर रहे हैं, शैथिल्य हो गया मतलब ख़त्म हो गया। अनंत, और जिस आसन में अनंत इन्फिनाइट टाइम तक हम बैठ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उस आसन को हम ये कहेंगे कि ये आसन जो है हमारा परफेक्ट हो गया। प्रयत्ने शैथिल्याम और अनंत समाप्तिभ्याम। Perfection in an asana is achieved when the effort to perform it become effortless and the infinite begin within its reach। किसी भी टाइम तक, अनंत काल तक हम उस आसन में बैठ सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी पेन के। तो दैट इज कॉल्ड परफेक्शन ऑफ आसना। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ आसनास। नाउ आफ्टर परफेक्शन हमने देखा यम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हो सकता है, हमारी सोशल लाइफ कैसी हो सकती है, नियम से देखा कि क्या हो सकता है। नाउ आसना इज़ अ थर्ड स्टेज, और इसके एक योगी को, एक इंडिविजुअल को क्या लाभ हो सकते हैं। ततः द्वंद्वा अनाभिगाता मीन्स जब भी आसन का परफेक्शन हो रहा है तब क्या होगा, हमारे दो डुअलिटीज़, व्यक्ति की डुअलिटीज़ जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो बॉडी लेवल पे हो, चाहे वो माइंड के लेवल पे हो। जैसे कभी कहीं किसी को बिठा दिया जाए, सेमिनार में बच्चों को बिठा दिया, आप लोगों को बिठाया, आपको कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, किसी ने मतलब मुझे प्यास लग रही है, कोई कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है। तो दो हमारे द्वंद्व हैं, जो दो हमारी डुअलिटीज़ हैं वो वैनिश हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती है व्हेन इंडिविजुअल इज इन परफेक्ट इन आसनास। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम क्या है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि जी? प्राणायाम क्या है, जब हम श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को की गति में विच्छेद ला सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड प्राणायाम। द प्राणायाम इज द रेगुलेशन ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लो ऑफ द ब्रेथ विथ रिटेंशन। जब हम रिटेंशन भी कर सकते हैं दैन दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। हम उसकी श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्राणायाम। हेयर बाह्य अभ्यंतरम स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म मीन्स प्राणायाम। नाउ द पतंजलि जी क्लासिफाई द प्राणायाम इन 3. The main types of the pranayama according to Maharishi Patanjali is the type of 3 type। मीन्स क्या है, बाह्य सांस को बाहर रोकना, अभ्यंतर सांस को अंदर रोकना, या बाहर ले जाना, अंदर ले जाना, और स्तंभ रोक देना, सांस नहीं लेना, पूरक, रेचक, कुंभक। अब इसको किसके साथ कॉम्बिनेट करना? देश मतलब कहाँ पे, हमारी बॉडी के किस पोर्शन में आपको ने ब्रीदिंग को रोका है। काल मतलब आपके जो मूवमेंट्स हैं वो फाइन हैं या एक्सजरेटेड है, या कितनी देर के लिए आप सांस को धीरे धीरे ले पा रहे हो, छोड़ पा रहे हो, या रिटेन कर पा रहे हो। संख्या भी कितने, नंबर ऑफ काउंट्स के लिए, इन सब को बांधना क्या कहलाएगा? टाइप्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम हैज 3 मूवमेंट्स, प्रोलॉन्ग एंड फाइन इनहेलेशन मीन्स इनहेलेशन कैसा होना चाहिए, प्रोलॉन्ग और फाइन, बिल्कुल स्लो इनहेलेशन होना चाहिए और ज़्यादा देर के लिए होना चाहिए। एक्सहेलेशन देन द रिटेंशन। अब रिटेंशन भी आई हैव टोल्ड यू द अबाउट 2 टाइप्स। सांस ली और आपने रिटेन कर दिया मीन्स अंतर प्राणायाम, अंतर कुंभका। सांस छोड़ी और आपने रिटेन किया मीन्स बाह्य कुंभका। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर विषय छेदी चतुर्था, मतलब चतुर्थ टाइप का जो प्राणायाम है वो क्या है? कुंभक 3 टाइप के होते हैं, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक और केवल कुंभक। तो जो केवल कुंभक है ये चौथे टाइप का प्राणायाम है। मतलब आपका सांस, जब हम कॉन्शियसली सांस ले रहे हैं, उसको रिटेन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
बाह्य कुंभक कर रहे हैं, अंतर कुंभक कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड बाह्य एंड अंतर कुंभक। बट स्पॉन्टेनियसली ट्रांसेंडेंटली अगर हमारा कुंभक परफॉर्म हो रहा है, चाहे वो बाह्य हो चाहे अंतर हो, दैट इज कॉल्ड केवल कुंभका। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्राणायाम। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ द प्राणायाम इज ततक्षयते प्रकाश आवरणम। हमारी बुद्धि पर जो भी पर्दे पड़े हुए हैं वो कैसे हटाए जा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम। व्हेन द परफेक्शन ऑफ द प्राणायाम इज गेन, द प्रकाश आवरण जो है, प्रकाश के ऊपर जो भी आवरण पड़ा हुआ है, दैट इज रिवील और दैट इज वेल ऑफ, कवरिंग जो है वो हमारी हट जाएगी। नेक्स्ट आपका है प्रत्याहार। सो विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानिकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। मीन्स प्रत्याहार क्या है? विड्रॉलमेंट ऑफ द सेंस, माइंड एंड द कॉन्शियसनेस। हमारे सेंस के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे जो कॉन्शियसनेस है, इसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से हटा के basically the pratyahar is called or known as the bridge between the antaranga and the bahiranga yoga. Means इस प्रत्याहार से हम प्रत्याहार की जब स्टेज आती है तब योगी अंतरंग और बहिरंग योग के बीच में कनेक्टेड रहता है। मीन्स दिस इज अ ब्रिज, ये पुल का काम कर रहा है कि अब इन प्रत्याहार में क्या हो रहा है, आपके सेंस, माइंड एंड कॉन्शियसनेस को हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड के अंदर ले जा रहे हैं। सिर को जो हमारा इंडिविजुअल है जो परफॉर्म कर रहा है, उसको हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड की तरफ ला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रत्याहारा। फ्रूट्स ऑफ द प्रत्याहारा तत्परमा वशेंद्रियाणा। मतलब क्या कि जब प्रत्याहार की परफेक्शन होती है तब हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे सेंस ऑर्गन के ऊपर, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट आपका रहेगा धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। धारणा क्या है? हमारे कॉन्शियसनेस को एक प्लेस पे फिक्स करना। हमारी जो भी कॉन्शियसनेस है, हमारा देश जो है, इसको बांधना, चित्त को बांधना एक स्थान पर, दिस इज कॉल्ड धारणा। फिक्सिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑन द वन पॉइंट और रीजन इज कंसंट्रेशन। और अटेंशन को हमारी बांधना, उसको कंट्रोल करना टू अ वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड धारणा। नेक्स्ट है ध्यान। तत् प्रत्येकतांता ध्यानम। मीन्स जो हमने वन पॉइंट पे फिक्स किया था, धारणा के समय पे क्या होता है, जो आपकी कॉन्शियसनेस फिक्स हो रही है वो बार बार इंटरप्ट होती है। बार बार जैसे हम धारणा में जा रहे हैं, जब स्टेज की धारणा की स्टेज आती है तब ध्यान इधर उधर भटकता है। मतलब जो आपका फोकस है वो इधर उधर भटकेगा। पर व्हेनेवर धारणा की स्टेज क्रॉस होगी, ध्यान की स्टेज आएगी, तब जो आपका फ्लो है, अटेंशन जो है वो एक ही रीज़न पे रहेगा। चाहे वो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करें, सेल्फ के ऊपर करें, ओमकार के ऊपर करें, आपकी कोई डायटी के ऊपर ध्यान लगाएं, तो आपका जो फोकस होगा वो कंटिन्यूस रहेगा। सो कंटिन्यूस फोकस टुवर्ड्स द वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ध्यान। और इंटरप्टेड फोकस ऑन द टुवर्ड वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड धारणा। धारणा और ध्यान में बस सिंगल लाइन का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका आएगा समाधि। समाधि वैसे कई तरीके की होती है, क्लासिफाई की गई है, सुपर कॉन्शियसनेस है। इसमें क्या होता है, तदे मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। इसमें क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे थे, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट, समाधि की स्टेज क्या है, जब आपका इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेडिटेशन बिकम वन। हमारा खुद का जो स्वरूप है, इंडिविजुअल का जो स्वरूप है, वो शून्य हो जाएगा। तदे मात्र निर्भासम, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिटेशन engulf द मेडिटेटर।
मेडिटेटर जो मेडिटेट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिटेशन के साथ एक हो जाए, मेडिटेटर का जो सर्वाइवल है या जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए। मेडिटेटर और ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिटेशन इज वन। दिस इज कॉल्ड समाधि, द स्टेज ऑफ द समाधि। नेक्स्ट द संयमा त्रयम एकत्रम संयमा, धारणा ध्यान समाधि टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट संयमा, द स्टेज ऑफ संयमा। देन द फ्रूट्स ऑफ द संयमा, तत् ज्ञात प्रज्ञा लोके, संयम की स्टैब्लिशमेंट होने पर क्या होता है, संयम की जब मास्टरी होती है तब हमें अवेयरनेस आती है, इनसाइड हमारी जो होती है वो अवेयर हो जाती है और हमारा जो परसेप्शन होता है वो भी हायर लेवल का हो जाता है। विद दिस थैंक यू वेरी मच। द फिलॉसफी ऑफ अष्टांग योगा इज फिनिश। थैंक्स अ लॉट।